Hello guys, we are really sorry. So it is not a fault of any of us. Neither आपका fault है, neither हमारा fault है. So it's basically technical fault related to Wi-Fi. So since Wi-Fi is not working, तो भी आपका क्लास नहीं रुकेगा. We will be recording the session. तो I am already recording it ऑफलाइन. तो रिकॉर्ड करके आई विल बी एबल टू पोस्ट इट द सेम वे. आपका लाइव में जो आपका एक्सपेक्टेशन था, वट एवर एक्सपेक्टेशन यू हैड फ्रॉम मी इन द लाइव, I will meet that expectation with the recording class. Okay, now listen to me guys. We were talking about what is that gastritis. Gastritis means what? Inflammation of the gastric mucosa. So gastritis can be divided into two types. So one is acute gastritis, another one is chronic gastritis. So when we are talking about acute and chronic gastritis, acute gastritis, one of the major and most common cause is NSAIDs. Major and most common cause is NSAIDs, and NSAIDs have a mechanism of action called as COX inhibition. As soon as they inhibit an enzyme called as COX, तो COX एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद, COX एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद, व्हाट इज द मैकेनिज्म? NSAIDs इनहिबिट द COX एंजाइम. COX एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, COX एंजाइम इज बीइंग इनहिबिटेड. आफ्टर इनहिबिशन देयर विल बी व्हाट? लॉस ऑफ gastric protection. मतलब stomach को means stomach is being protected by an enzyme called as COX-1, by an enzyme called as COX-1. Since that COX-1 enzyme inhibited by NSAIDs, now what is going to happen is that our patient will have, हमारा patient को क्या हो जाएगा? loss of what is that? gastric protection. So once there is a loss of gastric protection, patient will develop gastritis. So one of the most important complaint about the gastritis is our patient will develop, हमारा patient को क्या develop होगा? bleeding. So whatever bled, now bleeding कहाँ पे हुआ है? where is the bleeding? Bleeding is inside the stomach. कहाँ पे bleeding? stomach पे. If bleeding is inside the stomach, either it should come out from the oral cavity, मतलब oral cavity से बाहर आनी चाहिए, या नहीं तो ब्लड कहाँ से जानी चाहिए? स्टूल के थ्रू बाहर आना है. So दोनों में कंप्लेंट क्या होगा? अगर if blood comes out in the vomiting, if blood कहाँ से आएगा? vomiting से आएगा, we are going to call it as हेमाटेमिसिस. उसको क्या बोलते हो? हेमाटेमिसिस. अगर इफ दैट ब्लड इज कमिंग आउट इन द स्टूल, अगर स्टूल से ब्लड आएगा तो उसको बोलते हो मेलेना. मेलेना इज नथिंग बट डार्क टारी स्टूल. ये डार्क टारी स्टूल को आप लोगों को बोला जाता है मेलेना. दिस मेलेना के बारे में आई टॉट टू यू पीपल यस्टरडे इन द फर्स्ट लेक्चर. यू कैन गो थ्रू दैट. ठीक है. नाउ in the acute gastritis, what are the clinical feature? Clinical feature number 1 and 2. Number 1 is what? हेमेटेमिसिस. नंबर 2 इज व्हाट? मेलेना. आफ्टर मेलेना और हेमेटेमिसिस हमारा पेशेंट को और क्या हो सकता है? आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द थर्ड कंप्लेंट. द थर्ड कंप्लेंट विल बी, द पेशेंट विल नॉट टेल यू द कंप्लेंट, बट पेशेंट ऑन द एग्जामिनेशन यू कैन फाइंड दिस कंप्लेंट. ये कंप्लेंट क्या होगा? भैया ही इज हैविंग ए ब्लीडिंग. गाइस, ही इज हैविंग ए ब्लीडिंग. इफ देयर इज a bleeding, blood is lost. If blood is lost, what is going to happen to blood pressure? Blood pressure will be decreased. The patient will have a decrease of the BP. So these can be the manifestations associated with the acute gastritis. ठीक है. So acute gastritis को treatment कैसा करें? treatment करने का तरीका is very simple. What is that? treatment करने का तरीका is very simple. What we need to do? All we need to do is स्टॉप द ब्लीडिंग. अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको करना क्या चाहिए? स्टॉप द ब्लीडिंग. अगर एनएसएड के वजह से हुआ है तो आपको करना क्या चाहिए? एनएसएड को, ड्रग को स्टॉप करवानी चाहिए. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज, सो आई विल टीच यू पीपल थ्रू आउट योर मेडिकल करियर, थ्रू आउट योर एनी मेडिकल एग्जाम, एनी पेशेंट कम्स टू यू, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द हिस्ट्री, ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट? The basic life support type of treatment. Means what? You need to make sure he's breathing, you need to make sure his circulatory system is fine, you need to make sure the other systems are working. तो पहली चीज, हमारा पेशेंट को क्या हो रहा है? What is our patient's को problem? The problem is decrease of BP. अगर BP कम हो गया तो क्या करनी चाहिए? IV fluid. So we need to give the patient IV fluid. Apart from the IV fluid, we also might require blood transfusion. We also might require what? Blood transfusion. But blood transfusion से पहले आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ. There is a simplified way to remember. So any patient, so this is a extra information from the surgery. Any patient with bleed,
any patient with a bleed. If the bleed is there, the clinical feature of any bleeding, severe bleeding, one of the simplified way to find them in the MCQ is there will be decrease of the BP, there will be decrease of the BP, and there will be increase of the heart rate. These two, if you find, these are the classic features associated with any bleeding के साथ तो ये दोनों फीचर तो आपको पक्का मिलेगा. अगर अब ब्लीडिंग के साथ ये दोनों क्लिनिकल फीचर मिल गया तो आगे का क्या कहानी. सो फर्स्ट वी नीड टू डू इज IV fluid. So आज के टाइम पे preferred IV fluid is ringer lactate. I'm very proud of our team. As soon as Wi-Fi stop हो गया, they are already running and working on it. So he'll get it done. So you people, all you need to do is, आप लोगों को क्या करना है, हमारे ऊपर ट्रस्ट रखो, हम आगे का चला लेंगे. ठीक है. तो डॉक्टर साहब वाईफाई का अगर हो गए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग रिकॉर्ड करके देते. ठीक है. हाँ कोई नहीं, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया. विल गिव देम द रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम. ठीक है. थैंक यू सो मच, आप बहुत मेहनत लगा रहे हो. चलो IV फ्लूइड दे दिया. IV फ्लूइड, आफ्टर यू गिव IV फ्लूइड टू ए पेशेंट, आफ्टर यू गिव व्हाट, IV फ्लूइड टू ए पेशेंट, ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट, दैट सिंपल थिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज fresh frozen plasma. Next important thing you are going to give is what? FFP, fresh frozen plasma. Fresh frozen plasma के बाद then you can consider about what is that, blood transfusion. So this is the order of any treatment with the bleeding. तो चलिए डॉक्टर साहब acute gastritis तो खत्म हो गया. अब acute gastritis खत्म हो गया तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे मैं बताता हूँ. आगे हम लोग करेंगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस. कौन सी है? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस. लो भैया, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से 100% यू आर गोइंग टू गेट 1 or 2 MCQs. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आई वांट टू टीच यू पीपल इज कॉल्ड एज टाइप ए गैस्ट्राइटिस. व्हाट इज दैट? टाइप ए गैस्ट्राइटिस. सो टाइप ए गैस्ट्राइटिस कैसा? टाइप ए गैस्ट्राइटिस सर्जरी में भी पढ़ाते हैं, पैथ में भी थोड़ा बहुत बोलते हैं, बट दोनों कोरिलेशन आपको नहीं मिलता. Here I am going to do you exactly that help of correlating both sides. Now look here, type A gastritis. The first point we need to know, type A gastritis का cause क्या है? Type A gastritis is caused by autoimmune. Autoimmune का मतलब क्या होता है? One immune system is attacking our body. तो autoimmune attack of, so autoimmune से antibody बनेगा. Antibody बनेगा तो किसके लिए बनेगा? Antibodies are formed towards to the parietal cell. Most of the time antibody किसको बनता है? Parietal cell. किसको बनता है? Parietal cell. पेराइटल सेल. अगर पेराइटल सेल को एंटीबॉडी बन गया, अब क्या होगा? मैं कल पढ़ाया था ऑलरेडी, डिस्ट्रॉय द पेराइटल सेल. डिस्ट्रॉय द पेराइटल सेल. ठीक है. पेराइटल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पेराइटल सेल डिस्ट्रॉय होने के बाद प्रॉब्लम क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज ऑफ द एसिड प्रोडक्शन. देयर विल बी डिक्रीज ऑफ द एसिड प्रोडक्शन. अगर एसिड प्रोडक्शन कम हो गया, देख नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब तुम्हारा शरीर क्या करेगा? वंस देयर इज अ डिक्रीज ऑफ द एसिड प्रोडक्शन, व्हाट योर बॉडी विल डू? yesterday I taught to you people, anywhere acid is decreased, immediately the stimulating factor will come. But our body is working like this. See, understand the human body, it's very interesting. We cannot understand completely, but as much as we understood, that's very interesting. See, acid कम हो गया, acid has been decreased. Immediately your body will do something to increase the acid. कुछ ना कुछ करता है. क्या करेगा भाई? एसिड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा. इट विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द एसिड. हाउ विल इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द एसिड? विथ अ सिंपल लॉजिक. द सिंपल लॉजिक इज दैट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ए हार्मोन. द नेम ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिन. द नेम ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड एज gastrin. So once gastrin is increased, yesterday I told you people what exactly is gastrin. Gastrin is a hormone. Gastrin is what? हार्मोन. कोई भी हार्मोन है तो आप लोगों को क्या होगा? हार्मोन इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम. अगर हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट कर रहा है तो गैस्ट्रिन लेवल इन द ब्लड विल बी एलिवेटेड. अगर गैस्ट्रिन लेवल इन द ब्लड अगर एलिवेट हो गया, दैट विल लीड टू हाइपर गैस्ट्रिनेमिया. हाइपर गैस्ट्रिनेमिया. हाइपर
hypergastrinemia. So when we are talking about hypergastrinemia, there is an important MCQ about hypergastrinemia. What is that important MCQ? What exactly is that? Most common cause of what? Of the hypergastrinemia is what? Most common cause of the hypergastrinemia is very good. The answer is type A gastritis. टाइप ए गैस्ट्राइटिस. अब टाइप ए गैस्ट्राइटिस क्यों हुआ था? इट इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून इन नेचर. ऑटो इम्यून इन नेचर हो गया तो नाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द अदर नेम. टाइप ए गैस्ट्राइटिस का दूसरा नाम टाइप ए गैस्ट्राइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अदर नेम ऑफ द टाइप ए गैस्ट्राइटिस इज कॉल्ड एज एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस. क्या बोलते हो? एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस. एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस. So atrophic gastritis or type A gastritis are the ones basically same meaning ones which are causing your hypergastrinemia. So they can give you a MCQ like this. What is the MCQ? MCQ will be a 34-year-old female came to the hospital found to have hypergastrinemia. What is the most common cause of hypergastrinemia? The most common cause of hypergastrinemia is simplified answer टाइप ए गैस्ट्राइटिस. टाइप ए गैस्ट्राइटिस अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या मार्क करेंगे? एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस. व्हाट विल यू मार्क? एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस. वेरी नाइस. नाउ वी स्टडीड अबाउट वन प्रॉब्लम दैट इज एसिड प्रॉब्लम. One problem. What is the problem? Acid related problem. Once we are done with the acid related problem, parietal cells are being destroyed. अगर parietal cell भैया destroy हो गया तो what is going to happen? There will be decrease of something called as intrinsic factor. कौन है? Intrinsic factor. When there is a decrease of intrinsic factor, what is going to happen? Intrinsic factor नहीं है, there will be decrease of vitamin B12. There will be decrease of vitamin B12. If there is a decrease of vitamin B12, इसको ले चलते पूरा डेप्थ में. vitamin B12 कम हो जाएगा तो क्या? If there is a decrease of vitamin B12, that will lead to what? RBC maturation. RBC maturation impairment. RBC maturation को क्या करेगा? Impairment. अब मोस्ट ऑफ यू, अब बहुत लोग आप लोग क्या सोच रहे हो सर कहाँ जा रहे हो? सो वेरी सिंपल, vitamin B12 is a vitamin. This is required for the maturation of the RBC. Vitamin B12 चाहिए किस लिए? RBC maturation के. RBC मैच्योर होने के लिए विटामिन B12 चाहिए था. नाउ आवर पेशेंट इज नॉट हैविंग. हमारा पेशेंट के पास क्या है? B12 नहीं है. B12 नहीं है तो RBC मैच्योरेशन ठीक से होगा क्या? नहीं होगा. नहीं होगा तो उसी को क्या बोला मैंने? इम्पेयरमेंट. अगर RBC मैच्योरेशन इम्पेयर हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगा? दैट विल लीड टू ऑटोमेटिकली नॉर्मल RBC तो नहीं बनेगा, अब नॉर्मल RBC बनेगा तो इट विल क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज मैक्रोसाइटिक अनीमिया. मैक्रोसाइटिक अनीमिया के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ में हेमेटोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा. बट एज ऑफ नाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड मैक्रोसाइटिक अनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय टाइप ए गैस्ट्राइटिस. इसी का दूसरा नाम है और आल्सो कॉल्ड एज, यस्टरडे आई टॉट यू पीपल ऑलरेडी, पेर्निशियस अनीमिया. ठीक है. सो पेर्निशियस अनीमिया के लिए दे विल आस्क यू द टेस्ट यूज्ड फॉर द पेर्निशियस अनीमिया. पेर्निशियस अनीमिया को पता करने के लिए एक टेस्ट यूज करते हैं. द नेम ऑफ द टेस्ट इज ओनली कॉल्ड एज शिलिंग टेस्ट. कौन सी है? शिलिंग टेस्ट. आप लोगों को शिलिंग टेस्ट का प्रोसीजर से ज्यादा क्या पता होना चाहिए? शिलिंग टेस्ट का नाम. What is Schilling test? Schilling test is a test which is used for diagnosis of the pernicious anemia. Pernicious anemia क्यों होता है? Why pernicious anemia occurs? Because of B12 absorption decrease, because of decrease of the intrinsic. Classic? समझ में आ गया? So now where we went to surgery, we went to pathology, we went to physiology. Almost हम लोग 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लिए. समझ गए? Now let's get to the next important aspect. Now listen to me very carefully guys. टाइप ए खत्म हो जाएगा तो इमीडिएटली कौन आएगा? टाइप बी गैस्ट्राइटिस.
So when we are talking about type B gastritis, it is a simple thing to understand. टाइप बी गैस्ट्राइटिस इज कॉज्ड बाय, टाइप बी किस चीज की वजह से होता है, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा रटने का जरूरत पड़ेगा. टाइप बी का कॉज, द कॉज ऑफ द टाइप बी गैस्ट्राइटिस, द कॉज ऑफ व्हाट, टाइप बी गैस्ट्राइटिस is your bacterial cause, is your what, bacterial cause. So most of the bacterial gastritis जो भी होता है that is your type B gastritis. अब टाइप बी गैस्ट्राइटिस के अंदर बैक्टीरियल है तो व्हाट आर द बैक्टीरियाज विच कैन कॉज द बैक्टीरियल गैस्ट्राइटिस. एक तो है अपना कौन है, H पाइलोरी, बट H पाइलोरी के अलावा we can also, it can also be caused by streptococcus, it can also be caused by other bacteria, some cocci, that is aureus, staphylococcus aureus. S aureus can also cause bacterial gastritis, but usually हम लोगों को पता लगता है किससे, H pylori से. ठीक है, तो डक्स ऑफ टाइप ए गैस्ट्राइटिस पढ़ लिया, टाइप बी पढ़ ली. टाइप बी के बाद आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्राइटिस. देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्राइटिस. अब अदर फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्राइटिस होता क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्राइटिस. अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में डालेंगे, सर टाइप बी कहा, टाइप बी तो पढ़ा दिया, टाइप से आप पढ़ाए ही नहीं, भूल गए क्या सर, टाइप सी गैस्ट्राइटिस होता है. भैया एक बार ध्यान से सुनो, there is no such thing called type C gastritis. According to textbook called as Bailey and Love, which is a textbook for surgery, in that clearly there is only type A gastritis, type B gastritis, and there is one more thing called as other types of gastritis. There is no type C. Other types में कौन सी होता है, other types में the first and most important, they are chemical induced gastritis. कौन सी है, केमिकल इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस. केमिकल इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस आपको याद करवाने के लिए क्या बोलते हैं, टाइप सी. बट अगर कोई बोलेगा टाइप सी गैस्ट्राइटिस होता है क्या, आप हाँ बोल दिए तो आपको क्या समझा जाएगा, आपको पता है. तो don't fall into the trap. There is no type C gastritis. So chemical gastritis किस लिए होता है, एक चीज तो है भैया, दारू. What is daru? For the people who are attending from the South India, listen to me. Daru means, that is very simple, alcohol. Is that alcohol? So since I spoke about alcohol, let me give you people some interesting facts about alcohol today. Okay, but before going to that, let me finish the other types, chemical gastritis. Other ones are steroidal drugs. कौन सी है, स्टीरॉयडल ड्रग्स. कौन है, स्टीरॉयडल ड्रग्स. स्टीरॉयडल ड्रग्स के अलावा और कौन है, देयर इज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. तो दीज आर द वंस व्हिच कैन कॉज केमिकल इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस. केमिकल इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस के अलावा और क्या, डॉक्टर साहब सुन लो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज ए HIV इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस. HIV induced gastritis. There is a HIV induced gastritis. Then सुन लो, there are other things, that is सिर्फ एसिड के वजह से गैस्ट्राइटिस नहीं होता है. There is one more thing called as alkaline gastritis. कौन है, alkaline gastritis. कौन है भैया, alkaline gastritis. alkaline gastritis. So what I am feeling here is that alkaline gastritis के ऊपर this time they might ask you a MCQ. They might ask you a MCQ. I feel so because this is a confusing point. Confusing point है तो आपको क्वेश्चन पूछने का chances are very high. तो alkaline gastritis के बारे में when we are learning, listen to me very carefully. Alkaline gastritis usually after, कब होता है, after GI surgeries. After surgery on what, surgery on the stomach. सर्जरी ऑन द स्टोमक. स्टोमक के ऊपर सर्जरी करने के बाद होता है तुम्हारा व्हाट इज दैट, अल्कलाइन गैस्ट्राइटिस. तो ये कैसा होता है, पैथोजेनेसिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, फिर भी बता देता हूं आपको. मान के चलिए ये स्टोमक है, ठीक है. स्टोमक के अंदर आपने क्या कर दिया, यहां तक कट कर दिया. नाउ व्हाट यू डिड, यू ब्रॉट जेजुनम, और जेजुनम को ले आके यहाँ पे जोड़ दी.
स्टोमक के साथ किसको जोड़ दिए तुमने, जेजुनम को जोड़ दिया। स्टोमक के साथ किसको जोड़ दिए तुमने, जेजुनम को जोड़ दिया। ठीक है, अब जेजुनम को तुम स्टोमक के साथ जोड़ दिए तो क्या होगा, जेजुनम, ये वाली कौन है, जेजुनम। नाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड ये जेजुनम का कहानी कहां से। सो देर आर सम सर्जिकल प्रोसीजर्स जिसके अंदर जेजुनोस्टोमी विल बी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी विल बी डन। सो इन दैट व्हाट हैपेंस, जेजुनम के अंदर अल्कलाइन सब्सटेंस होती है बच्चों। कौन होता है, अल्कलाइन सब्सटेंस। अब अल्कलाइन सब्सटेंस बच्चों, अल्कलाइन सब्सटेंस डियर स्टूडेंट्स, इट विल स्टार्ट टू गो बैक इनटू द स्टमक। अब अल्कलाइन सब्सटेंस, इतना अल्कलाइन सब्सटेंस कंटिन्यूअसली अगर स्टमक के अंदर आएगा, दैट विल लीड टू गैस्ट्राइटिस, दैट इज ओनली कॉल्ड एज, व्हाट इज दैट, alkaline gastritis caused by, that is your surgery of the stomach, surgery on the stomach. Now I want you people to listen to me very carefully. Now alkaline gastritis तो आप पढ़ लिए, very proud of you. Alkaline gastritis के अलावा there are some important points I want you to understand what exactly is that. तो alkaline gastritis आप लोगों को समझ गए, but I want you people to understand there is something called as corrosive materials. कोरोसिव मटेरियल्स। अब कोरोसिव मटेरियल का मतलब क्या हो गया, कोरोसिव मटेरियल्स यूजुअली वी हैव सम ऑफ देम। एक होता है केरोसिन, एक होता है कौन, केरोसिन। ठीक है, केरोसिन के अलावा और कौन सी कोरोसिव मटेरियल है, दैट इज योर अल्कलाइन सब्सटेंसेस। अल्कलाइन सब्सटेंसेस सच एज, मान के चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरोसिव मटेरियल। अब आपको सोच रहे होंगे सर एसिड एक तो स्किन के ऊपर गिरेगा तो जला देगा, बट अल्कलाइन भी जलाएगा क्या, इफ एसिड फॉल्स ऑन द स्किन इट विल बर्न, but will alkaline also do the same thing? Yes, absolutely possible. So the corrosive material whatever is there, even these corrosive materials can cause the damage in the GIT. Even corrosive materials can also cause what, damage in the GIT. So whenever if there is a corrosive material, be it a acid, be it a alkaline substance, both of them are corrosive material. So these corrosive materials will also cause one of the most important damage, damage will be caused to the GIT, damage to the GIT leading to what, GIT को डैमेज कर दिया, डैमेज करने के बाद it will lead to one of the most important चीजें, that will lead to what is that, डैमेज कर दिया, डैमेज के बाद हीलिंग होगा, डैमेज के बाद क्या होगा, हीलिंग होगा, हीलिंग के बाद क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा। पैथोलॉजी में आप लोग पढ़े ही होंगे, अगर पढ़े भी नहीं हो तो आज के बाद याद रखना, कहीं पे भी शरीर के अंदर डैमेज होता है, बीट GIT, बीट एनी प्लेस, कहीं पे भी डैमेज होता है, एनीवेयर इफ देयर इज अ डैमेज, दैट विल लीड टू हीलिंग, हीलिंग के बाद फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस मीन्स व्हाट, फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। So there is a connective tissue formation inside your GIT. अगर फाइब्रोसिस बनेगा, फाइब्रोसिस ना तुम्हारा इलास्टिक जैसा नहीं है भैया, मतलब वो स्ट्रेच नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। सो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, corrosive material will cause fibrosis, fibrosis will lead to stricture। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है तुम्हारा करोसिव सब्सटेंस से। अब करोसिव सब्सटेंस से स्ट्रक्चर हो रहा है, तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो यार, यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है। अच्छा, तो पढ़ा रहा हूं इसीलिए क्योंकि MCQ यहाँ पे। व्हाट इज दैट MCQ? वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लाई स्ट्रक्चर, लाई स्ट्रक्चर होता क्या है, व्हाट इज लाई स्ट्रक्चर? लाई स्ट्रक्चर इज ए वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो पहले नाम लिख लेते लाई स्ट्रक्चर के बारे में। अब लाई स्ट्रक्चर होता क्या है, अरे यार इसको क्या हो गया पेन को, लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लाई स्ट्रक्चर इज सीन इन इसोफेगस, सीन कहां पे होता है, इसोफेगस। कहां पे आता है, इसोफेगस।
अब इसोफेगस के अंदर लाई स्ट्रक्चर आ रहा है, इसोफेगस के अंदर कौन आ रहा है, लाई स्ट्रक्चर आ रहा है। तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इसोफेगस इज हैविंग ए लाई स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉज्ड बाय वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इट इज कॉज्ड बाय इंजेशन, इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है टक सब, पी जाना। इंजेशन मीन्स व्हाट, पी जाना। इंजेशन ऑफ corrosive substances, ingestion of corrosive, what is that, corrosive substances, corrosive substances. So anywhere if there is a ingestion of the corrosive substances, guys, there is little bit defect with the pen, तो पेन के साथ कभी दिक्कत होती है तो we will have to face this kind of issues, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए with the writing, ठीक है। तो now listen to me, anywhere if there is a ingestion of the corrosive substances, that will lead to one of the most interesting thing that is only called as what is that, लाई स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को अभी तक क्या पढ़ाया था, सुन लीजिए मेरा बात को, व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल। वी हैव डैमेज टू द जीआईटी caused by what, alkaline substances and kerosene, because of which we have a MCQ called लाई स्ट्रक्चर। ये मिलता है इसोफेगस में, ये इंजेक्शन ऑफ द corrosive substances से हुआ एंड दैट विल लीड टू स्ट्रक्चर। तो मतलब क्या हो गया, मतलब इसोफेगस के अंदर नैरोइंग आता है बाय इंजेक्शन ऑफ द corrosive मटेरियल। चलो वापस चलते हैं हमारा स्पेशल गैस्ट्राइटिस और अदर गैस्ट्राइटिस के अंदर। सो गाइस, द लास्ट डिसऑर्डर आई वांट टू टीच यू पीपल व्हेन इट कम्स टू गैस्ट्राइटिस इज द इंटरेस्टिंग वन, दैट इज ओनली कॉल्ड एज, व्हाट इज दैट, दैट इज ओनली कॉल्ड एज मेनेंट्रियस डिसीज। इज दैट मेनेंट्रियस डिसीज, मेनेंट्रियस डिसीज of the stomach. Menetrier disease of the stomach is what? It is basically simple thing. इसका clear cut pathogenesis, clear cut exact pathogenesis तो पता नहीं है। It is having a genetic factor. इसके अंदर एक फैक्टर है genetic factor, genetic factor, ठीक है। ये जेनेटिक फैक्टर के वजह से क्या होता क्या है, द प्रॉब्लम दे विल आस्क यू, द प्रॉब्लम इज, सो लेट्स राइट डाउन द प्रॉब्लम, पैथोजेनेसिस इज बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज, व्हाट इज दैट, हाइपरट्रोफी। क्या होता है भाई, हाइपरट्रोफी। क्या होता है भैया, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी ऑफ व्हाट, हाइपरट्रोफी ऑफ व्हाट, हाँ जी, हाइपरट्रोफी ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाइपरट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक म्यूकोसल फोर्स, गैस्ट्रिक म्यूकोसल फोर्स। Hypertrophy of the gastric mucosal folds will lead to, hypertrophy of the gastric mucosal folds will lead to what is that, menetrier disease। तो इसके अंदर से सर आप ज्यादा मत पढ़ाओ, हमें एमसीक्यू पढ़ाओ यार, बस हमें पास होना है ना। तो पास होने का तरीका, यहाँ पे एमसीक्यू क्या होता है, यस इट कैन बिकम malignant, can become what, malignant। मतलब क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं, इट कैन बिकम ए कैंसर। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा, ये पेशेंट वाज फाउंड टू हैव डायग्नोसिस ऑफ मेनेंट्रियर डिसीज ऑफ द स्टोमक, सो विल देयर बी पॉसिबिलिटी फॉर द मैलिग्नेंसी और नॉट, यस इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल माय डियर डॉक्टर्स, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। चलो फिर, तो गैस्ट्राइटिस के बारे में सब कुछ, गैस्ट्राइटिस पढ़ लिए, कोरोसिव मटेरियल पढ़ लिए, ब्लीडिंग पढ़ लिए, सर्जरी के अंदर ब्लीडिंग वगैरह पढ़ लिए, एंड एज वेल यू स्टडीड अबाउट व्हाट, यू स्टडीड अबाउट पैथोजेनेसिस पढ़ लिए, एंड यू कोरिलेटेड विद द पैथोलॉजी। दिस इज हाउ वी नीड टू लर्न, राइट। तो अब आप लोगों को इतना समझ में आके मजा आ गया, तो नाउ आई वांट टू टीच यू पीपल वन इंटरेस्टिंग थिंग। व्हाट इज दैट वन इंटरेस्टिंग थिंग, that interesting thing is about esophagus, guys. What is that, esophagus? So esophagus के अंदर आप सबको पता है सब कुछ, even I do know that you people are very much brilliant, but I will give you such kind of important points जिनके अंदर आपको जितने भी जरूरी चीजें हैं सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। वैसे वाली
what exactly we are going to learn. Esophagus के अंदर let's write down something called as basic MCQ. यहाँ पे लिख देते हैं basic MCQ, सीधा लिखते हैं basic MCQ. So what are the basic MCQs which we need to know? तो मैं बेसिक एमसीक्यू तो बोलूंगा बट मैं पढ़ाऊंगा कैसे, कॉन्सेप्ट के तरीके में. आई विल टेल बेसिक एमसीक्यू बट हाउ विल आई टीच इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्सेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 इज दैट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. क्या है? माइक्रोस्कोपिक. सो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन होता है, देयर विल बी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू पीपल. द नेम ऑफ द क्वेश्चन विल बी, गाइस, दैट इज वेरी सिंपल. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू पीपल विल बी व्हाट. सो दे आर गोइंग टू आस्क यू पीपल व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, देयर विल बी एपिथेलियम. कौन सी एपिथेलियम होती है? देयर विल बी स्क्वामस एपिथेलियम. Squamous epithelium. When we are talking about squamous epithelium, guys, and the next important aspect is that esophagus has no serosa. Esophagus has no serosa. So if there is no serosa, means what? Means is very simple. ये मान के चलते हैं esophagus के अंदर म्यूकोसल लेयर है, सब म्यूकोसल लेयर है, मसल लेयर है, एंड दैट्स इट. बट आउटरमोस्ट कवरिंग, ये जो सेरोसा होता है इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, वैसा वाला सेरोसा इसोफेगस में नहीं होता है. इसोफेगस हैज नो सेरोसा. अगर सेरोसा ही नहीं है, इफ देयर इज नो सेरोसा, कैन यू डू सेरोटमी? सेरोटमी मीन्स व्हाट? टू कट द सेरोसा. अब सर्जरी के अंदर आप लोग सोचो, अगर कहीं पे सेरोसा लेयर है ही नहीं तो सेरोसा को कट कर पाओगे? Think about this. If there is no serosa, will you be able to cut serosa? No, right? So if there is no serosa in esophagus, no serotomy is done. No serotomy is done. No serotomy is done. This is the important. Okay. So if a examiner puts you a trap, a patient was done seromyotomy, तो ग्रेस मार्क. क्यों? क्योंकि सेरोमायोटोमी इसोफेगस में हो ही नहीं सकता, सेरोसा होता ही नहीं. समझ गए? चलो लेट्स अंडरस्टैंड. इसोफेगस के अंदर आप लोगों का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसोफेगस का नैरोएस्ट पार्ट पूछता है. क्या पूछा जाता है? नैरोएस्ट पार्ट. नैरोएस्ट पार्ट. द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द इसोफेगस इज अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर. UES, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसोफेगस का, ऊपर वाला ओपनिंग, दैट स्फिंक्टर इज द वन व्हिच इज नैरोएस्ट पार्ट. दैट अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज ओनली कॉल्ड एज, व्हाट डू वी कॉल दैट अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर एज? दैट इज ओनली कॉल्ड एज, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज ओनली कॉल्ड एज क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर. क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर. क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर. ठीक है, क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर को ही बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो? दैट इज ओनली कॉल्ड एज अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर. उसी को बोलते हो भैया क्या? दैट इज अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और ए नैरोएस्ट पार्ट. अब इससे यूज क्या है? आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड. सो इफ एट ऑल कोई भी पर्सन, अगर मान के चलते हैं, आई हैव ए स्मॉल चाइल्ड हु इज प्लेइंग इन द गार्डन. This child was playing with a coin and swallowed the coin. सुन लो पूरा. एक छोटा बच्चा था हमारे सामने, वो गार्डन पे खेल रहा था. खेलते हुए वो कॉइन के साथ खेल रहा था. कॉइन के साथ खेलते हुए कॉइन को बच्चे ने क्या कर दिया? निगल गया. So baby has swallowed the coin. Now if baby has swallowed the coin, now sometimes coin might pass into the stomach, but sometimes coin might get struck. Now examiner will ask you, क्या बोलेगा? A child was playing in the garden. He was playing with a coin. Later it was realized that the coin has been swallowed. If the coin has been swallowed, what is the most common site of the coin implication? मतलब पूछेगा coin कहाँ पे हटकेगा? हटकेगा कहाँ पे? जहां पे छोटा सा रास्ता है. रास्ता छोटा कहाँ पे है? That will be in the upper esophageal sphincter. That is only called as cricopharyngeal sphincter. Lovely. चलो फिर आगे बढ़ते हैं.
The next important aspect when we're talking about the esophagus, guys, I'm not going to see हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सारे सब्जेक्ट को कंबाइन कर रहे हैं, तो हम लोग जो जरूरत है वहां पे फोकस करेंगे, ठीक है। आई कैन गिव यू द लेक्चर ऑन द esophagus, उसका लेंथ है, इधर है उधर है। कब पूछा भैया आखिरी बार esophagus का लेंथ? कब पूछा गया आखिरी बार? टीथ से मतलब अपर मोलर से पहले कंस्ट्रिक्शन तक का डिस्टेंस कितना? तो क्यों टेंशन ले रहे हो? थोड़ा टेंशन कम करो अननेसेसरी चीज पे। तो ये नेसेसरी तीनों के तीनों एमसीक्यू पूछा गया, यस पॉसिबल। तो अब स्क्वामस एपिथेलियम में तो नाउ द एमसीक्यू हियर इज वेरी इजी, whichever the epithelium is there, that epithelium will can give rise to cancer। तो एमसीक्यू क्या पूछेगा? मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ esophagus। Most common cancer of esophagus is, what is that? That answer is squamous cell carcinoma। Why squamous cell carcinoma is the most common? The reason is very simple, because epithelium कौन सी है? Squamous। खत्म बात। So once you understood about this, let me tell you people about the next important aspect about the esophagus। Now esophagus के बारे में जब बात कर रहे हैं तो I want you people to understand one of the most important, guys, I'm not going to bring in achillea cardia here, because achillea cardia we will discuss it with the pictures। achillea cardia, Zenker diverticula, ये दोनों हमारा अगले प्लान में है, जो किसमें, जो थियरी के अलावा पिक्चर ओरिएंटेड डिस्कशन के साथ पढ़ाऊंगा मैं, वो दो डिसऑर्डर, ठीक है। तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट द esophagus। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट द esophagus इज गर्ड, ठीक है। अब गर्ड सुनते ही आप लोग सोचेंगे, अरे सर जी गर्ड को तो आप 2 घंटे पढ़ाओगे। गर्ड को 2 घंटे पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। There are some places where GERD will be taken for 2 hours also, GERD will be taken for 20 hours also, for they are just wasting the time of you man। आपका टाइम वेस्ट कर रहे। अरे GERD इतना सिंपल टॉपिक है, फटाफट बता दो, है कि नहीं। तो GERD के अंदर पहली बात लिखो, पहली बात क्या है? पैथोजेनेसिस। अपन तो भैया सीधा पॉइंट में घुसने वाले। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस के अंदर होता क्या है? होता इतना है गाइस, देयर विल बी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 इज ओवर डिस्टेंडेड स्टमक। क्या होता है? ओवर डिस्टेंडेड स्टमक। ओवर डिस्टेंडेड, व्हाट इज दैट? स्टमक। एंड पॉइंट नंबर 2, लोअर esophageal sphincter, lower esophageal sphincter is not working। अगर लोअर esophageal sphincter काम नहीं कर रहा, या नहीं तो तीसरी बात है। तीसरी बात कौन सी होती है? तीसरी बात इज ओनली कॉल्ड एज TLOSRS। तो व्हाट इज TLOSRS? ये पूरा टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है, आई वांट योर अटेंशन। TLOSRS का मतलब होता है ट्रांजिएंट, क्या होता है? ट्रांजिएंट लोअर esophageal, lower esophageal sphincter relaxation। lower esophageal sphincter relaxation। So transient lower esophageal sphincter relaxation normally in a human being there will be approximately 4 times। approximately minimum होता है कितना? 4 times। अब आपको कोई पूछेगा कि कितना टाइम होता है? 4 से 5 बार भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स अब देखो, ट्रांजिएंट मतलब, ट्रांजिएंट मीन्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ your lower esophageal sphincter is being relaxed। So right now I don't want you people to think about parrot esophagus, ये वो, थोड़ा उसको छोड़। अब मेरा बात पूरा सुन। In every human being in one day the lower esophageal sphincter will relax for 4 to 5 times in a day। Now don't get into argument with anybody about the number of times। Some people say it is 3 to 4 times, some people say it is 4 to 5 times, okay। You don't have to worry about the number,
बट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, अगर ये टीएलओ एसआर, इफ द स्पिंक्टर इज रिलैक्सिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर 4 बार रिलैक्स हो रहा है तो ठीक है। अगर ये नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत सारे टाइम क्या हो रहा है, रिलैक्स हुए जा रहा है, सो इफ देर इज ए इंक्रीज ऑफ टीएलओ एसआर, इफ देर इज ए व्हाट, इंक्रीज ऑफ द टीएलओ एसआर, देन इट विल बिकम ए प्रॉब्लम। अब ये तीनों चीजों के वजह से, ये चीजों के वजह से क्या, now listen to me, because of all these things what happened is your stomach, ये था तुम्हारा इसोफेगस, उसके बाद था कौन, स्टोमक, तो स्टोमक क्या हो गया, डायलेट हो गया, प्रॉब्लम। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, तो भी प्रॉब्लम। बार बार रिलैक्स हो गया तो भी प्रॉब्लम। ड्यूरिंग ऑल these conditions the content from the stomach will come back, content from the stomach will what, come back into where, esophagus। अब स्टोमक के अंदर कौन है भैया, HCl, ठीक है। तो नाउ राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, that is the patient is having one of the most important ways to remember the regurgitation। क्या होता है, regurgitation, regurgitation of gastric content, regurgitation of what, gastric contents, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक कंटेंट्स कहां पे जाएगा, टू द इसोफेगस, टू वेयर, टू द इसोफेगस, कहां पे जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। गैस्ट्रिक कंटेंट्स रिगर्जिटेट होके कहां गया, इसोफेगस में गया, बढ़िया। अब इसोफेगस में जाएगा तो इसोफेगस विल गेट, इसोफेगस को क्या होता है, इसोफेगस को एसिड है ना, एसिड आके इसोफेगस पे गिरेगा तो इसोफेगस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज होगा, क्योंकि इसोफेगस के अंदर म्यूकस बैरियर नहीं है, ओनली म्यूकस बैरियर है कहा, स्टोमक में। तो एसिड अगर रिगर्जिटेट हो गया, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है डॉक्टर साहब, इसोफेजाइटिस। क्या होता है, इसोफेजाइटिस। इसोफेजाइटिस इज नथिंग बट व्हाट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस। अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस हो रहा है तो माय डियर ब्रिलियंट स्टूडेंट सुन लीजिए, इसका कंप्लेंट क्लिनिकल फीचर, इसोफेजाइटिस के वजह से क्लिनिकल फीचर आ सकता है। द नेम ऑफ द क्लिनिकल फीचर इज ओनली कॉल्ड एज हार्टबर्न। व्हाट इज दैट, हार्टबर्न। क्या होता है वो, हार्ट। तो ये मेरा लिखने के इससे में प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इट इज अबाउट द टेक्निकल इशू विद द सॉफ्टवेयर। ओके, हार्ट बर्न आता है, तो हार्ट बर्न आता है तो प्रॉब्लम क्या है, हार्ट बर्न इज नथिंग बट बर्निंग सेंसेशन इन द स्टेर्नम रीजन, बर्निंग सेंसेशन इन द स्टेर्नम रीजन। ओके, अब हार्ट बर्न आता है, हार्ट बर्न के अलावा ना थिंक अबाउट दिस अदर क्लिनिकल फीचर, हार्ट बर्न इतने में नहीं होता है। द पेशेंट कैन समटाइम्स डेवलप वॉमिटिंग, patient can sometimes develop what is that, vomiting, ठीक है। समटाइम्स पेशेंट को क्या हो सकता है, रिगर्जिटेशन हो सकता है। रिगर्जिटेशन में क्या होता है, रिगर्जिटेशन में डॉक्टर साहब सुन लीजिए एक बार, रिगर्जिटेशन इज नथिंग बट द पेशेंट विल हैव गैस्ट्रिक कंटेंट्स कमिंग बैक थ्रू द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के अंदर भी समटाइम्स क्या हो सकता है डॉक्टर साहब, समटाइम्स क्या हो सकता है, द पेशेंट कैन डेवलप सोरनेस इन द माउथ, बिटरनेस इन द माउथ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओरल कैविटी किसके साथ कनेक्टेड है, मिडल ईयर। क्यों, क्योंकि ओरोफेरिंक्स के पास में कौन है, स्टेशियन ट्यूब। स्टेशियन ट्यूब किसको कनेक्ट करता है, मिडल ईयर। कभी कभार देयर आर रेयर केसेस ऑफ द गर्ड, पेशेंट विल कम टू यू विद ईयर पेन, मिडल ईयर पेन लेके आता है, बट प्रॉब्लम होता है गर्ड। समझ गए। So this type of interesting cases all because of what, regurgitation। तो अभी 3 सिम्टम एक साथ आ गया, 3 सिम्टम एक साथ आ गया तो टेक्निक सीख लो। टेक्निक नंबर 1 is that throughout your preparation anywhere you find 3 symptoms together, 3 signs together, any triad, there is a MCQ। उसको ध्यान में रखना है, ये तीनों, इसको even I can call it as a triad of GERD, GERD का triad। क्या बोल सकते हैं इसको, गर्ड का ट्रायड। सो गर्ड का ट्रायड भी खेला जाता है, इसी को बोल सकते हो आप लोग किस क्या, दैट इज ओनली कॉल्ड एज गर्ड का ट्रायड।
Now let's continue to the next important point, है ना. तो the next important point what I want you people to learn is, so GERD के बारे में पैथोजेनेसिस सीख लिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर सीख लिए. अब मुझे ये मत बोलना सर इसका रिस्क फैक्टर बताओ. अरे भैया सुट्टा फूकने से होता है, कॉफी ज्यादा पीने से होता है, स्पाइसी फूड खाने से होता है, एनीथिंग विच इरिटेट द स्टमक होता है. ऑल ऑफ दिस आर ए रिस्क फैक्टर. लाइफस्टाइल यस, दारू ज्यादा पी रहे हो यस, अगर ठीक से टाइम टू टाइम खाना नहीं खा रहे हो यस, ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल. But examiner is never interested in that. Examiner is interested in this one. That is only called as DUXUB management. मैनेजमेंट ऑफ द GERD. यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस किए हो कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पे ये नहीं बोला, ट्रीटमेंट नहीं बोला, मैनेजमेंट बोला. तो मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? मैनेजमेंट मीन्स आई हैव ए पेशेंट विद अ हार्टबर्न कंप्लेंट, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करूंगा. Okay, so the first important, यहाँ पे biggest trap is there is a biggest trap here, and this biggest trap every student will fall for it, and I don't want any of my students to fall in the trap. So as much as exam is concerned, आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के लिए आपको क्या चाहिए, एग्जाम के लिए all I want you people to remember the first step of management. कोई भी पेशेंट आया हार्ट बर्न लेके, कोई भी पेशेंट आया हार्ट बर्न लेके, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फॉर ए पेशेंट विथ कंप्लेंट्स ऑफ हार्ट बर्न, कंप्लेंट्स ऑफ हार्ट बर्न. अगर कोई भी पेशेंट हार्ट बर्न लेके आया तो आई वांट यू पीपल टू डू ए ईसीजी, डू ईसीजी, ठीक है, डू ईसीजी एंड रूल आउट कार्डियक पैथोलॉजी और रूल आउट द मायोकार्डियल इंफेक्शन. एमआई को हमेशा रूल आउट कर दो. तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक रूल, ये हो गया क्या, बेसिक रूल. बट ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली टारगेटिंग टू द GERD. तो GERD को टारगेट करके पहली ट्रीटमेंट क्या करोगे? पहला ट्रीटमेंट होगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. अब गलती से भी ये मत बोलना सर पीपीआई दे देंगे, पीपीआई पहले स्टेप में नहीं देते हो. फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. व्हाट यू आर गोइंग टू डू बच्चे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद क्या करना? लाइफस्टाइल को चेंज करना. लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए यू आल्सो एडवाइज द पेशेंट, advice for one more thing, there is a elevation of head end of the bed. अभी ये क्या हो गया सर, क्या बोले जा रहे हो? कुछ नहीं है भैया. The person is sleeping on a bed. What I'm going to do is that I will advise my patient who is having GERD to elevate the head end. मैं क्या बोलूंगा, सर जिस तरफ लगा के सोते हो उस तरफ थोड़ा हाइट कर लीजिए, नॉट विद द पिल्लो, रादर बेड को ही थोड़ा हाइट बना लीजिए ताकि ग्रेविटी के वजह से स्टोमक का कंटेंट वापस ना आए. दिस आल्सो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल चेंज. तो पहला एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ GERD? द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ GERD इज वेरी गुड, दैट इज योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. एमसीक्यू नंबर. तो आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? सेकेंड स्टेप में यू आर गोइंग टू गिव योर पेशेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. क्या दोगे बच्चे? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए, इफ दैट फेल्स, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए फिर भी पेशेंट आके बोल रहा है सर जी मुझे फिर भी कोई ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी मुझे हार्ट बर्न आ रहा है, देन यू आर गोइंग टू डू व्हाट? एंडोस्कोपी. देन यू आर गोइंग टू डू व्हाट? अपर जीआई एंडोस्कोपी. अपर जीआई एंडोस्कोपी जब करोगे तो अपर जीआई एंडोस्कोपी में तीन चीज देखोगे, एक इसोफेगस, एक स्टोमक, एक डिओडिनम. स्टोमक और डिओडिनम तो मैं कल पढ़ा दिया था. अब इसोफेगस का कहानी क्या है? अपर जीआई एंडोस्कोपी, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड. अपर जीआई एंडोस्कोपी में आपको क्या क्या मिल सकता है? देयर कैन बी इसोफेजाइटिस. क्या मिल सकता है? इसोफेजाइटिस मिल सकता है. ओके, इसोफेजाइटिस के अलावा यू कैन ऑल्सो गेट DUXUB बैरेट इसोफेगस. क्या है? बैरेट इसोफेगस. बैरेट इसोफेगस भी मिल सकता है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल सकता है इसोफेजाइटिस. तो बैरेट इसोफेगस होता क्या है? बैरेट इसोफेगस इज सीन इन नॉर्मल पर्सन और ए लॉन्ग स्टैंडिंग गट. पहली रूल,
लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड में मिलेगा, लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड। तो लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड में होता है क्या, बैरेट इसोफेगस। तो आप लोगों को यहाँ पे बैरेट इसोफेगस को सर्जरी क्लासेस में आप लोगों को आई टीच यू पीपल, बट यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, क्रिस्पी बनाना है। क्रिस्पी बनाना है तो क्या करनी है, धड़ा धड़ ये पूछेगा, ये बता, है कि नहीं। तो चलो बैरेट इसोफेगस के अंदर क्या क्या पूछेगा। बैरेट इसोफेगस के अंदर पहली बात, डॉक्टर साहब बैरेट इसोफेगस का बेस्ट डायग्नोसिस कैसा करो, बैरेट इसोफेगस का डायग्नोसिस कैसा करो। अपर जीआई एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी विथ बायोप्सी। विथ क्या करना चाहिए, बायोप्सी। बायोप्सी करना ही पड़ेगा। बायोप्सी के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो बायोप्सी के अंदर हॉलमार्क। तो बायोप्सी के अंदर टिश्यू लिए, टिश्यू लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डॉक्टर साहब समथिंग कॉल्ड एज गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। ठीक है, अब गॉबलेट सेल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो फिजियोलॉजी में ले चलता हूँ मैं, ऐसा बंदा नहीं हूँ कि आधा आधा करना। ठीक है, फिजियोलॉजी में ले चलता हूँ। नॉर्मली ये देखो एन करके सर्कल मारूंगा तो नॉर्मली गॉबलेट सेल फाउंड इन, कहाँ पे होता है, फाउंड इन डिओडिनम। डिओडिनम किसके लिए बिलोंग करती है, डिओडिनम इज ए पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। नॉर्मली गॉबलेट सेल्स आर फाउंड इन डिओडिनम। नॉर्मली गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन। क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन। अब ये सेल कहाँ पे आया है, ये सेल आया है देखो यहाँ पे, दोनों को कोरिलेट करके देखे क्या एक बार। हाँ यहाँ पे देखो अपर जी एंडोस्कोपी बायोप्सी इन दैट हॉलमार्क आई एम गेटिंग गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल कहाँ पे मिल रहा है, इसोफेगस के अंदर, बट नॉर्मली कहाँ पे होना चाहिए डॉक्टर साहब, डिओडिनम। सो द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द डिओडिनम now is also found in esophagus. This is only called as metaplasia. This is only called as metaplasia. Means the cells, actual definition of metaplasia is change of phenotype of cell is only called as metaplasia. ये एक्चुअल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, बट आपको ये भी सिंप्लीफाइड वे में बताया जाता है, एक एपिथेलियम से दूसरा एपिथेलियम, फ्रॉम वन एपिथेलियम टू अनदर एपिथेलियम इट्स बीइंग चेंज्ड. Now basically esophagus has squamous epithelium. Now goblet cells came. While goblet cells are coming, the intestinal epithelium is coming into esophagus. क्या हुआ, intestine का epithelium कहाँ पे आए, esophagus में. Intestinal epithelium came to where, esophagus. So if intestinal epithelium came to esophagus, so what type of metaplasia? This is also MCQ. This is only called as intestinal. क्या बोलते हो, intestinal metaplasia. Intestinal metaplasia. तो the intestinal metaplasia के लिए classic example is what is that? That is Barrett esophagus. So यहाँ पे होता क्या है intestinal metaplasia? यहाँ पे esophagus में squamous epithelium था ना, squamous epithelium is replaced by intestinal columnar epithelium. इंटेस्टाइनल कॉलमनर एपिथेलियम. तो इसी को बोला जाता है क्या भैया, दैट इज ओनली कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया. तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया हो गया कहां पे, इन द प्लेस कॉल्ड एज इसोफेगस, दैट इज ओनली कॉल्ड एज बैरेट इसोफेगस. अब यहां तक ना एग्जामिनर आज के टाइम पे ना बहुत ब्रिलियंट हो गया. नाउ he started to realize that every student started to correlate pathology and surgery together. Now he started to put a trap for it. So he will ask you people, what is the treatment of Barrett esophagus? अब Barrett esophagus का treatment, if they ask you people, you need to do one simple thing. All I want you people to pay attention. What exactly he is asking you, that is very important. If they are asking you best drugs, if they ask you people best drug, if they ask you people best drug, the answer is PPI. The answer is PPI. Okay, but आगे जाके देखो डॉक्टर साहब, बैरेट इसोफेगस के बारे में देखना है तो आप लोगों को कैसा रियलिटी में कैसा मैनेज करनी है, अगर कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आता है तो कैसा आंसर करना है. सो बैरेट इसोफेगस में हुआ क्या था, मेटाप्लेसिया. चलो
अब मेटाप्लेसिया बैरेट इसोफेगस का प्रॉब्लम क्या है? मेटाप्लेसिया बैरेट इसोफेगस का प्रॉब्लम क्या है? मेटाप्लेसिया. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बैरेट इसोफेगस? मेटाप्लेसिया. बैरेट इसोफेगस के साथ प्रॉब्लम क्या है? मेटाप्लेसिया. So if there is a metaplasia, I want you people to understand metaplasia can lead to cancer. I want you to understand anywhere if there is a metaplasia that will increase the risk of cancer. Point number 1. पैथ से याद रखना, जनरल पैथ की पॉइंट है भैया, ऐसे ही मिल रहा है, लो मच. अब मेटाप्लेसिया if at all mild, if there is a mild metaplasia, the best treatment would be proton pump inhibitor. अगर if there is a severe metaplasia, if there is a severe metaplasia, if there is a severe metaplasia, there is a high risk of Barrett esophagus becoming into cancer. So if there is a severe metaplasia, that will lead to increased risk of cancer. That will lead to what? Increased risk of esophageal cancer. Increased risk of what? Esophageal cancer. If there is an increased risk of esophageal cancer, now the most important question to you people is that Barrett esophagus का complication. Barrett esophagus का complication cancer. तो कौन सी कैंसर आएगा? In the patient with Barrett esophagus, the cancer is adenocarcinoma. In the Barrett esophagus, most common cancer is adenocarcinoma. Adenocarcinoma. सो आई वॉन्ट यू पीपल, आप लोगों को आज एक टेक्निक सिखाऊंगा. अभी ये टेक्निक मेरा बात पूरा सुन लोगे तो समझ में आएगा. दैट टेक्निक इज व्हाट? दैट टेक्निक इज गाइस, हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडेनोकार्सिनोमा, विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा, ये क्या होता क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल दे दूंगा. एंड आज के बाद इन ऑल आवर लेक्चर वेन एवर ऐसे एडेनो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, तो वील गो लिटिल बिट आउट ऑफ जीएटी. यहाँ पे थोड़ा ऐसा बॉक्स के अंदर आ जाते हैं. ये बॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत कैंसर के बारे में देख लो. डॉक्टर साहब पूरा सुन लीजिए. एपिथेलियल ट्यूमर, कोई भी एपिथेलियल ट्यूमर, कोई भी क्या है? एपिथेलियल ट्यूमर. Now, any epithelial tumor means what? The tumor which is arising from the epithelial cell. Now, epithelial tumor is there. It can be a benign tumor. It can be a benign tumor. It can be one more type of tumor. Epithelial tumor के अंदर और एक तरीके का ट्यूमर हो सकता है. It can be a malignant tumor. It can be a malignant tumor. So in all the epithelial tumors, there can be a benign tumor or a malignant tumor. Now, when we are talking about any malignant tumor which is coming from the epithelial cell, we call it as carcinoma. We call it as what? Carcinoma. तो अब कार्सिनोमा तो हो रहा है. अब कार्सिनोमा मतलब कोई भी कार्सिनोमा कैसा बोल सकते हैं? कहां पे क्या कार्सिनोमा कैसा लगा है? That is very easy to understand. If any secretory epithelium, if any secretory epithelium means what? It should be able to produce something. मतलब पूरा सुन लीजिए. secretory epithelium का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस कर सके. म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले हो, या कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, या कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है. एनी सेक्रेटरी एपिथेलियम मींस इट माइट बी सेक्रेटिंग सम म्यूकस और सम हार्मोन और सम एंजाइम. These type of secretion, any type of secretion, if there is present, we call it as a secretory epithelium. So from the secretory epithelium, if tumor is there, then we are going to call it as adeno. If any tumor arising from the secretory epithelium, we are going to call it as adeno. In the adeno, what is the problem? The problem is this adeno can be of two types. What is that? Benign. Another one is your malignant. So what exactly I'm trying to tell you people? Secretory epithelium can have a tumor. It can be benign tumor, it can be malignant tumor.
So secretory epithelium who is having a benign tumor, we are going to call the tumors as adenoma. We are going to call them as adenoma. ठीक है. अगर any malignant tumor if it is arising from the secretory epithelium, very good, we are going to call it as adenocarcinoma. Adenocarcinoma. अब भैया ये लॉजिक लेके जाना, कहीं पे भी लगाना गलत नहीं. So what I taught you people, epithelial tumor can be benign or malignant. In that we have secretory epithelium. This secretory epithelium, if there is a secretory epithelium से tumor, we are going to call it as adeno. अगर adeno के अंदर benign है तो adenoma, अगर malignant है तो adenocarcinoma. Cleared? चलो. Now listen to me very carefully. Right now what happened? Right now let's go back. जरा पीछे जाके देखते हैं. तो हमारे पास कौन है? गॉबलेट सेल. हमारे पास कौन है? गॉबलेट सेल. तो गॉबलेट सेल इज ए सेक्रेटरी एपिथेलियम. अब सेक्रेटरी एपिथेलियम से कैंसर आएगा तो कौन सी कैंसर आएगा ऑटोमेटिकली डॉक्टर साहब? ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट रिस्क ऑफ एडेनोकार्सिनोमा, क्योंकि सेक्रेटरी एपिथेलियम से आ रहा है. सेक्रेटरी एपिथेलियम से आ रहा है तो वी आर गोइंग टू गेट विच टाइप ऑफ कैंसर? एडेनोकार्सिनोमा. तो एडेनोकार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन साइट डॉक्टर साहब पूरा सुन लीजिए, ये पूरा इसोफेगस है, ये स्टोमक है. ठीक है, जो भी कंटेंट वापस आ रहा है, द मोस्ट कॉमन एरिया हु इज डैमेज्ड इज लोअर इसोफेगस. नॉर्मली बहुत ज्यादा डैमेज कहां पे होगा? लोअर इसोफेगस. अगर लोअर इसोफेगस में बहुत डैमेज है तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट जहां पे मेटाप्लेसिया होगा? लोअर इसोफेगस. मतलब Barrett esophagus will start in the lower esophagus. Now when there is a lower esophagus who is involved in the Barrett's, now if it develops into a cancer, adenocarcinoma in the esophagus, most common site, what is that? Lower esophagus. So basically adenocarcinoma of the lower esophagus is in the lower one third of the esophagus. Lower one third of the esophagus में if there is a Barrett esophagus, only then your answer will be adenocarcinoma. If not, examiner if asked you most common cancer of esophagus, answer it as squamous cell carcinoma. Most common cancer in the Barrett esophagus or in the GERD patient, then answer as a adenocarcinoma. इसको लेके बहुत लोग गलती किए होंगे, ये गलती की वजह से भैया आपका 149 to 150 का बीच का डिफरेंस रहा होगा. तो नाउ लेट्स मेक दैट चेंज. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो इसोफेगस के बारे में, गर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिए. सो गर्ड के बारे में पढ़ लिए तो गाइस वी आर स्टडीइंग अबाउट जीआईटी. आगे पीछे जाके आराम से मजे लेके पढ़ रहे हैं ना. तो सो फार आई टॉट यू पीपल मोर ऑफ सर्जरी, मोर ऑफ फिजियोलॉजी, है ना, है कि नहीं? तो अब थोड़ा बहुत other things, let me teach you people about other things related to what is that is your GIT. So what exactly are the other things which I want to teach you people about the GIT? So please pay attention and listen to me. Okay, so see here, so last around 20-25 minutes of our session is going to be simplified version of what? Simplified version of simple MCQs, facts, जो रिसेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो 100% क्वेश्चन आने का चांसेस है, ऐसे पॉइंट्स को बता दूंगा. ठीक है, सी 1.5 आवर सैचुरेट होने तक आप टॉपिक सीख ले. नाउ हाफ एन आवर धड़ाधड़ पॉइंट सीखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड ओरल कैविटी के अंदर से 100% MCQ will be there from any of the subjects such as physiopatho-pharma, medicine, surgery. कहीं से भी एक पॉइंट तो पक्का आएगा. ओरल कैविटी के अंदर I want to teach you people about one problem called as patch. Now patch के बारे में पढ़ना है तो listen to me very carefully. पहला पैच पढ़ेंगे व्हाइट पैच. पहला पैच पढ़ेंगे कौन सी? white patch in the oral cavity. So white color patch in the oral cavity, we need to understand guys, white patches in the oral cavity, what exactly are there? The point number 1 or the disease number 1 of the white patch, listen to me, that is only called as leukoplakia. अब मेरा बात पूरा सुन लीजिए.
in complete medicine, anywhere, if you hear a term ल्यूको, आपको ल्यूको से कहीं से भी शुरू हो रहा है, मतलब कुछ भी व्हाइट कलर चीज की बात चल रही है, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूको मलेशिया रिलेटेड टू व्हाइट मैटर, है ना, दैट्स हाउ यू नीड टू डू, ठीक है, ल्यूकोप्लिकेट व्हाइट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दैट इज ओरल कैंडिडा। व्हाट इज दैट, कैंडिडा, ठीक है। कैंडिडा के अलावा देयर इज तीसरी प्रॉब्लम, दैट इज हेरी सेल ल्यूकोप्लेकिया, हेरी सेल ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। तो डॉक्टर साहब पूरा सुन लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 1, हाँ, ल्यूकोप्लेकिया, व्हाट इज ल्यूकोप्लेकिया, व्हाइट पैच इन द ओरल कैविटी, व्हाइट पैच इन द ओरल कैविटी है, तो ल्यूकोप्लेकिया का कॉज क्या होता है, चीविंग ऑफ द टोबैको, chewing of tobacco. So tobacco chewing will lead to white patch. अब छवाओ भैया रजनीगंधा, what is that, ल्यूकोप्लेकिया आएगा। So that's what I'm trying to tell you people, what chewing of the tobacco can lead to what is that, ल्यूकोप्लेकिया। Now chewing of the tobacco if it is leading to ल्यूकोप्लेकिया, तो आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है, डेक्स साहब पॉइंट नंबर वन MCQ नंबर 1, कैन नॉट बी स्क्रेप्ड, याद रखना, कैन नॉट बी स्क्रेप्ड। मैं सिखाता हूं इसको कैसा होता है, क्या होता है, कैन नॉट बी स्क्रेप्ड ऑफ, ये पॉइंट याद रखो। दूसरी पॉइंट, इट इज ए प्री मैलिग्नेंट, इट इज ए प्री मैलिग्नेंट, ठीक है। तीसरी पॉइंट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट, दैट इज योर डक्स ऑफ, इसको नो सर्जरी नीडेड इनिशियल स्टेजेस में, इन द स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट मेरे साथ साथ याद कर लेंगे, चलो। ल्यूकोप्लेकिया इज व्हाइट पैच इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर व्हाइट पैच क्यों होता है, व्हाइट पैच होता है बिकॉज ऑफ ए रीजन कॉल्ड एज, दैट इज च्यूइंग ऑफ द टोबैको। च्यूइंग ऑफ द टोबैको करने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ था अपने पेशेंट को, दैट इज ल्यूकोप्लेकिया। नाउ ल्यूकोप्लेकिया के अंदर इट कैन नॉट बी स्क्रेप्ड ऑफ, स्क्रेप्ड ऑफ मतलब क्या है, इंसान का ना एक आदत होता है छेड़ कहानी करना, मीन्स वेरेवर यू फाइंड सम पैच, wherever you find some pimple, wherever you find some blister, उसको क्या होता है, छेड़ना होता है। तो the same way when a patient comes to you with a oral cavity patch, what you are going to do, ये oral cavity का पैच है मान लो, पैच को आप लोगों ने क्या कर रहे हो, स्क्रेप करने का कोशिश कर रहे हो, ये स्क्रेप करने का कोशिश करने से नहीं आएगा। When you try to scrape it off, you cannot remove. If examiner says you, a patient is having chewing tobacco का history है and cannot be scraped off वाली white patch है, डायरेक्ट आंसर इज ल्यूकोप्लेकिया। अब प्री मैलिग्नेंट का कहानी क्या है, डॉक्टर साहब इसलिए बोलते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन इंडिया इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कैंसर क्यों है, क्योंकि तंबाकू मीन्स टोबैको च्यूइंग इज वेरी मच मैक्सिमम इन इंडिया बिकॉज ऑफ विच ओरल कैंसर आता है। तो दैट इज वाई दिस टोबैको च्यूइंग पहले क्या करेगा, ल्यूकोप्लेकिया बाद में क्या होगा, कैंसर होगा, ठीक है। अब इनिशियल स्टेज में अगर ल्यूकोप्लेकिया मिल गया तो सीधा उसको सर्जरी में लेने की जरूरत नहीं है। ल्यूकोप्लेकिया पेशेंट है तो स्टिल इट इज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, अभी कैंसर बना नहीं है। अभी इफ राइट नाउ इफ द पेशेंट स्टॉप्स च्यूइंग द टोबैको आल्सो, मे बी दैट पैच माइट नॉट गो ऑफ बट इट विल नॉट बिकम मैलिग्नेंट। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, टोबैको स्टॉप करने के बाद वो पैच नहीं जा सकता है पर कैंसर बनने का चांसेस नहीं होगा। चलो कैंडिडा, अब कैंडिडा की कहानी क्या है, अरे कैंडिडा बहुत आसान है, कैंडिडा इज कॉज्ड बाय कैंडिडा अल्बिकेंस, कैंडिडा अल्बिकेंस होता क्या है, कैंडिडा अल्बिकेंस ओरल कैविटी के अंदर आएगा तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल थ्रश, क्या बोलते हैं उसको, ओरल थ्रश, क्या बोलते हैं उसको, ओरल थ्रश ना। ओरल थ्रश है तो इट इज सीन विथ, इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, इसका रिस्क फैक्टर इट इज ऑलवेज, अगर नॉर्मल पेशेंट तुम और मेरे जैसे यंग हेल्दी अडल्ट में कैंडिडा आएगा क्या, नहीं आएगा, तो किस में आएगा, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट,
व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब वीक इम्यून सिस्टम। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कौन कौन होते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स यूजुअली एचआईवी वाले होते हैं, एचआईवी वाले होते हैं। दूसरे कौन होते हैं? ल्यूकेमिया वाले होते हैं। Leukemia patients also most of the time immunocompromised. Then diabetes mellitus patients. Okay. Then you also have, apart from that, any patient who is taking something called as cytostatic drugs. Cytostatic drugs. अभी टेंशन मत लो ना, साइटोस्टैटिक ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर यूजुअली यूज्ड इन कीमोथेरेपी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये ड्रग्स लेने से डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन कम होती है। ऐसा ड्रग लेने वालों में भी हो सकता है क्या भैया? दैट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। साइटोस्टैटिक ड्रग के अलावा और कुछ है क्या? यस यस यस, दैट इज स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये सारे चीजों की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट आएगा तो क्या होगा? उसको क्या होगा? कैंडिडा आएगा। अब कैंडिडा आया तो पेशेंट आएगा, सर मेरा मुंह में व्हाइट कलर की पैच आया हुआ है। अब मुझे क्या पता ये तंबाकू चबाने की वजह से आया या कैंडिडा आया। तो आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर द टेक्निक। का टेक्निक इज वेरी इजी, इट कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ, इट कैन बी स्क्रैप्ड। मतलब क्या हो गया? मैं बोला ना इंसान का आदत क्या है? इंसान का आदत छेड़ना। तो आप ल्यूकोप्लेकिया को छेड़ोगे, ल्यूकोप्लेकिया नहीं आएगा। कैंडिडा को छेड़ो, कैंडिडा आ जाएगा। मतलब यू टेक ए स्पैचुला, यू स्क्रैप इट ऑफ। स्पैचुला ले लो, स्क्रैप करो, स्पैचुला के साथ था व्हाइट कलर का जो भी पैच था वो आ जाएगा। दैट इज ओनली इट कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ, दैट इज ओनली इट कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ। मींस यू टेक ए स्पैचुला, you try to remove the white color patch, it will come off in the patients with what is that? Candida, in the patients with Candida. So when we are talking about Candida patient, we are done with this. Now I want you people to understand hairy leukoplakia. Hairy leukoplakia बहुत सिंपल है। मान के चलिए डॉक्टर साहब, दिस इज ए एरिया ऑफ ए व्हाइट पैच। इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि ये व्हाइट पैच होता है, व्हाइट पैच के साथ देयर विल बी हेयर लाइक प्रोजेक्शन। व्हाइट पैच के साथ व्हाट इज दैट? हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो सर इसका कहानी क्या है यार? अजीब चीजें बताते हो, मुंह के अंदर कहां से हेयर्स आएगा? भैया दे आर नॉट हेयर्स, दे आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन। हेयर लाइक प्रोजेक्शन आया, हेयरी सेल ल्यूकोप्लेकिया आया, इसका कॉज पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है हेयरी सेल ल्यूकोप्लेकिया का कॉज क्या है? दैट इज कॉज्ड बाय ईबीवी, एप्स्टीन बार वायरस। कौन है? एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस के वजह से होता है हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। तो मेरे हिसाब से क्या पता है, आप जो करते हो, जो चीजें करते हो लाइफ में, those things are only coming back to work on you. How they are only coming back to work on you? Think about this. ल्यूकोप्लेकिया क्यों आया? टोबैको, ये तुम्हारा मर्जी। कैंडिडा क्यों आया? वन ऑफ द रीजन इज HIV, यू आर नॉट हैविंग प्रोटेक्शन। तीसरा कौन है? हेरी ल्यूकोप्लेकिया। again it can be spread by kissing etc, sexually it can be transmitted। तो again what is the possibility? hairy leukoplekia के अंदर भी what is the possibility? that is तुम्हारा जो कांड किए होते हैं उसका रिजल्ट भी हो सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? माय डियर लवली स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सलाइवा के बारे में देख लेते सर, सलाइवा के बारे में देखते हैं। सलाइवा के बारे में देखना है तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है? सलाइवा के बारे में देखने के लिए डॉक्टर साहब, सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रही है तो कहानी क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स आर स्टिमुलेशन। इसको सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करता है? सलाइवेशन के लिए स्टिमुलेशन कौन करता है? सलाइवेशन का स्टिमुलेशन इज डन विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम, दैट इज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा एक्टिवेट होगा दैट विल लीड टू स्टिमुलेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड किसको प्रोड्यूस करवाता है? सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड किसको प्रोड्यूस करवाता है? सलाइवा। नाउ लिसन टू मी, सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से प्रोड्यूस हुआ सलाइवा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये मान के चलिए डॉक्टर साहब एक सलाइवरी ग्लैंड, ये मान के चलिए क्या है? एक सलाइवरी ग्लैंड।
सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बाहर आने के लिए, फॉर द सलाइवा टू कम आउट, फॉर द सलाइवा टू कम आउट, यू हैव ए डक्ट, you have a so I want you to understand that there are some important issues which can be occurred with what, occurred with salivary gland. डक्ट के अंदर स्टोन हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट के अंदर स्टोन्स हो सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टोन्स हो जाएगा तो इसी को बोलते हो डॉक्टर साहब सायलोलिथियासिस। क्या बोलते हो? सायलोलिथियासिस, सायलोलिथियासिस। सो सलाइवरी डक्ट के अंदर स्टोन बनेगा तो क्या बोलते हो? सायलोलिथियासिस। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट इज ओनली कॉल्ड एज सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब मान के चलिए ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड गॉट डैमेज्ड फॉर सम रीजन, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड डैमेज्ड फॉर सम रीजन। अगर सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड इफ इट गॉट्स डैमेज, अगर सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड क्या हो गया? डैमेज हो गया। डैमेज हो गया तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कौन आता है? सलाइवा आता है। तो सलाइवा नॉर्मली उसका एक रास्ता होता है ना, ये निकलना चाहिए, ये सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट है तो डक्ट से बाहर निकलना चाहिए, पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डैमेज हो गया। अब क्या होगा देख लीजिए, ये सलाइवा पूरा लीक होने लगेगा, सलाइवा पूरा क्या होगा? लीक होने लगेगा। अब लीक होने लगेगा तो मेरा बात पूरा सुनो, ये फ्लोर ऑफ द माउथ, दिस इज व्हाट? फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब यहाँ पे टंग के नीचे वाली, यहाँ पे क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हो गया। यहाँ से सलाइवा ऐसा बाहर निकलना चाहिए था मान के चलो, यहाँ पे क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हो गया। डैमेज हो गया तो क्या हुआ? सलाइवा पूरा बाहर निकल के आ गया। नाउ दिस सलाइवा विल स्टार्ट टू accumulate बिलो द टिश्यूज, दिस सलाइवा विल स्टार्ट टू accumulate व्हाट? बिलो द टिश्यूज। अब क्या accumulate हुआ है? जस्ट क्लियर सलाइवा। So this saliva accumulation in the sub below the tissues, saliva accumulation below, what is that? Below the tissues, it will give rise to, तो ऐसे सलाइवा रहेगा कि इफ सलाइवा accumulates there will be enlargement, वहां पे enlargement हो जाएगा, that will lead to cystic enlargement, क्या बोलते हैं उसको? सिस्टिक एनलार्जमेंट हो जाएगा। दिस सिस्टिक एनलार्जमेंट इज ओनली कॉल्ड एज रनुला। इसी को क्या बोलते हो? रनुला। तो रनुला के ऊपर बहुत सारे शानदार एमसीक्यू पिछले 4-5 साल में बहुत बार, इतने ज्यादा बार पूछा है कि उतने ज्यादा बार। सो सिंपल एज दैट, व्हाट इज रनुला? सिस्टिक एनलार्जमेंट। क्या हो गया यहाँ पे? सलाइवरी ग्लैंड डैमेज होने की वजह से सलाइवा कहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ? सेल्स के नीचे। तो रनुला मान के चलो। नाउ लिसन टू मी, रनुला के ऊपर अगर लाइट डाल, तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, लिसन टू मी हियर, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये वाला फ्लैश लाइट, अगर ये फ्लैश लाइट को लेके मैं ऐसा मेरा स्किन के ऊपर, मतलब मेरा हाथ के ऊपर रखूंगा, विल आई बी एबल टू सी द फ्लैश लाइट? नो। बट इफ देर इज ए रनुला, यहाँ पे रनुला है मानो, रनुला के ऊपर ऐसा लाइट रखूंगा तो इमीडिएटली रनुला विल बिकम पूरा ब्राइट। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज ओनली कॉल्ड एज ट्रांस इल्यूमिनेशन, मीन्स वेरी सिंप्लीफाइड वे में, any lesion, if you put the light on the lesion, if it will become illuminated, we call it as trans illumination. So the trans illumination property is present. Ranula is positive for trans illumination. क्यों ट्रांस इल्यूमिनेशन के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए? वेरी इजी, ट्रांस इल्यूमिनेशन के लिए पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे भरा क्या है? सिर्फ फ्लूइड ही फ्लूइड भरा है ना, फ्लूइड भरा है तो ऑटोमेटिकली ओनली फ्लूइड इज फिल्ड, दैट मीन्स देयर विल बिकम ए ट्रांस इल्यूमिनेशन। ट्रांस इल्यूमिनेशन मीन्स व्हाट? व्हेन यू पुट ए लाइट ऑन एनी लीजन, दैट लीजन विल बिकम ब्राइट ना। ओके, नाउ रनुला के लिए व्हाट इज द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस पूछते ही क्या करोगे पता है आप लोग? सर सीटी करेंगे, सर फ्लूइड हम अल्ट्रासाउंड करेंगे।
अरे यार इतना क्यों टेंशन लेना है ना। तो उसके लिए सिंप्लीफाइड वे क्या है, सो आप लोगों को पैनिक करवाते हैं बाय गिविंग अल्ट्रासाउंड, बाय गिविंग एमआरआई। यू डोंट हैव टू डू दैट मच। क्लियरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन, द डायग्नोसिस इज क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब क्या हो गया डॉक्टर साहब, आप जाओगे पेशेंट का ओरल कैविटी चेक करोगे एंड आप बता दोगे ये रन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आप ट्रीटमेंट करोगे। आप क्या क्या करोगे डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट फॉर द clinical after treatment for the ranula is something called as marsupialization. So the most important thing, listen to me very carefully. Most of you people will argue on this point also, sir incision and मतलब एक्सरसाइज करना, रिमूव करना, incision and excision is the treatment. No, my dear doctors, as per the latest textbook update, what we can notice, the best treatment is marsupialization. All right, as per the latest updates, what we can see, marsupialization. Do not get confused. So this is the story of everything you needed to know for the salivary gland. So salivary glands के बारे में आप लोगों को क्या क्या बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलोलिथियासिस, और दूसरी चीज पढ़ाया गया रनुला। सलाइवा का स्टिमुलेशन कहाँ से आता है, दैट इज फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आ जाएगा। नाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये पैरासिम्पैथेटिक का अगर काम कर रहा है तो कौन सी रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, इन द सलाइवरी ग्लैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स बाय M3 receptor. Works by what, M3 receptor. M3 receptors, right, M3 receptors. So we will discuss about the drugs in the other parts of our life, right. So this is the major chunk of our GAT, but apart from that we will have in one more session. In that I will be discussing more of intestine absorption, digestion and surgical aspects related to it, and then we will be proceeding to the next system called as hepatobiliary system. All right, thank you so much guys. पर वन रूल क्या है, हम लोग लाइव आज बहुत अच्छा चल रहा था, बट दैट लाइव गॉट शॉर्टकट। इसके अंदर किसी का गलती नहीं है, वाईफाई कट हो गया, फिर भी देर वर्किंग, द टीम इज वर्किंग, वेरी प्राउड ऑफ इट, वेरी प्राउड ऑफ इट कि जैसा वाईफाई गया तब से उनको ढूंढ के काम करवाने में लगे हुए हैं। दे विल डू इट, बट वट एवर इट हैपन्स, क्लास नहीं रुकेगी तुम्हारे लिए। मैं आऊँगा कंटिन्यूसली, अगर लेट भी हो गया रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। कल शाम में मिलने तक आपको टाइम है, कभी भी वीडियो देख लेना, उसके बाद आराम से कंटिन्यूसली पढ़ लेना, ठीक है। बट स्टे टुगेदर, आप लोग शेयर कीजिए इफ यू लाइक द लेक्चर्स, एंड लाइक लेट अस नो इफ यू नीड एनीथिंग मोर, एंड प्लीज डू शेयर द लेक्चर्स। एंड सबके साथ तुम्हारा दोस्त लोगों को हो गया, एवरी पॉसिबल पर्सन, क्योंकि वी आर नॉट आस्किंग फॉर योर मनी, ठीक है, वी आर नॉट आस्किंग फॉर योर मनी, वी आर आस्किंग यू टू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर, and you are getting a best possible way of integration of all the subjects, where you can do like combination of all 5 subjects, which is the biggest problem, that is फार्मा को कैसा कंबाइन करें दूसरे सब्जेक्ट के साथ, उसको सॉल्व करने के लिए मैं जब बैठा हूँ तो तुम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का सिंपल सी काम है यार, आज लेक्चर देके बेनिफिटेड लगा, पैसे तो नहीं मांग रहे, या नहीं तो आपको इधर बैठो उधर बैठो कुछ भी नहीं बोल रहे, आपका दोस्त लोगों को भी शेयर कर दीजिए, that will be useful for them also, for us also, है ना। So that's how we need to work. And the last but not the least, पैनिक से दूर कैसा होना चाहिए, पैनिक से दूर होने का तरीका। तो पैनिक से दूर होना है तो guys listen to me, always make time slots of 40 minutes each. सो हर 40 मिनट्स ईच का टाइम स्लॉट। ये टाइम स्लॉट कैसा होता है, सी मॉर्निंग से लेके नाइट तक मेक 4 to 5 6 7 8 जितने भी पॉसिबल हो, 40 मिनट का, हाउ मेनी एवर नंबर पॉसिबल, बट 40 minutes time slots you need to make. So if you make the time slots of 40 minutes each, what is going to happen, your brain will not be under a stress, brain will never be under a stress. So you studied for 40 minutes,
टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है, टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, बाहर जाओ, हैव ए टी और जस्ट हैव ए वॉक। इफ कुछ भी नहीं करना है, जस्ट तुम्हारा बुक्स वहां पे छोड़ दो, थोड़ा इधर उधर घूम फिर के आओ, ठीक है, देन कम बैक, सिट एंड स्टडी। दैट इज द रूल नंबर 1। टाइम स्लॉट्स बनाना है 40 मिनट्स ईच, दिस विल डिक्रीज योर पैनिक, ठीक है। देन रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इज कॉल्ड एज, मैं बोलता हूँ थिंकिंग, मैं बोलता हूँ इसको क्या, थिंकिंग। थिंकिंग में क्या करना चाहिए, व्हेन यू आर स्टडीइंग सर्जरी फॉर एग्जाम्पल, डोंट थिंक अबाउट दिस, लीव इट। सर्जरी पढ़ रहे हो, आपका पूरा दिल सर्जरी पे लगे रहे, आपका पूरा मन सर्जरी पे लगे रहे, पूरा अटेंशन सर्जरी पे लगे रहे, ऑल द दुनियादारी का प्रॉब्लम्स कुछ भी अफेक्ट नहीं करना है, तुम्हारा पूरा ब्रेन सर्जरी पे लगे रहने। थिंकिंग, थिंकिंग मीन्स व्हाट, इन दिस थिंकिंग डोंट थिंक अबाउट अदर सब्जेक्ट्स व्हेन यू आर डूइंग सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट कर रहे हो उसी के ऊपर फोकस कीजिए। दिस इज रूल नंबर 2। देन रूल नंबर 3 आपको फॉलो क्या करना चाहिए, रूल नंबर 3 इज दैट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। Why do you mean by believe in yourself? बिलीव इन यूर सेल्फ मतलब ये होता है, ये बहुत सिंपल सी कहानी है यार। बिलीव इन यूर सेल्फ मीन्स, आप लोग बहुत लोग क्या करते हो पता है, दूसरों को देख के, अरे यार उसका इतना सब्जेक्ट हो गया, इसका इतना सब्जेक्ट हो गया, अगर उतना सब्जेक्ट हुआ होता तो जाके हमसे एग्जाम ही दे देते ना। he could have gone and given the exam, let him go and give the exam ना, let him score like 300 से 300 लाने दो। 19 सब्जेक्ट 30 बार पढ़ लिया भाई, 30 बार पढ़ ले तो सीधा नीट पीजी क्रैक कर दे, कौन मना के, उसको देख के तुम क्यों डर रहे हो। ही इज नॉट द वन हु इज गिविंग एग्जाम फॉर यू, आर द वन हु इज गिविंग एग्जाम फॉर योरसेल्फ, तो दूसरों को लेके क्यों करें। दैट इज द रूल नंबर 3। देन नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट कीप चेंजिंग, डोंट कीप चेंजिंग। मैं कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं भैया, डोंट कीप चेंजिंग द, मतलब क्या हो गया सर, इट्स वेरी इजी सर, ऑल यू नीड टू डू इज वट एवर द मटेरियल विच इज बीन प्रोवाइडेड टू यू, or whatever the material which you took with your interest, focus on that material। तो किसी भैया ने आया, भैया का 3rd अटेम्प्ट है, भैया ने बोले कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, some senior came to me who is doing 3rd attempt, he told me there is no question coming from these notes। my first question, if he is doing 3rd attempt, why you are listening to his advice? What I'm trying to tell you people, I'm not trying to degrade anybody, if somebody felt that way, अगर किसी को लगा कि मैं डिग्रेड कर रहा हूँ भाई, मैं माफी चाहता हूँ, किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा। अरे यार अगर उनको ऐसा लगता हो तो अभी तक भैया पास किए होंगे ना। तो मेरा मानना ये है, what I will think is that if somebody, for example I am sitting and I am focusing, putting all my energy, इतना इंटरेस्ट लगा के आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ो ना। Why do you want to keep change the notes? ठीक है, आप नोट्स चेंज करते जाओगे, अडाप्टेशन में ही तुम्हारा पूरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है, ये एक चीज। एंड द मोस्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज इज रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, ये रेगुलरिटी का मतलब है कि आई विल स्टडी 1 डे, अब और 5 दिन तक मैं नहीं पढ़ूंगा, अब 2 दिन तक पढ़ूंगा, तीसरे दिन ब्रेक ले लूंगा, नहीं, कम टाइम भी पढ़ो, रोज में 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हो दैट्स फाइन, बट यू नीड टू गिव दैट फोकस टाइम, ठीक है। अब रोज में 4-5 घंटे बोला हूं, इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा क्लास छोड़ के 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता, यू नीड टू गिव दैट स्पेसिफिक टाइम, ओके। तो रेगुलरिटी मतलब रोज पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, कुछ भी हो जाए तुम्हारा सिंक मिस नहीं होनी चाहिए, ये हो गया रेगुलरिटी। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है sleep, the sleep for you people, now listen to me, 1 month before the exam, 1 month before the exam तब का कहानी अलग होती है, 1 month before the exam का कहानी अलग होती है, and till
1 मंथ बिफोर, मतलब लास्ट 1 महीना एंड लास्ट महीने तक। देखो लास्ट मंथ, ये सर इसको एक थोड़ा कंफ्यूजन स्टेटमेंट लिख दिया मैंने ही, इसको इजी कर देते, इसको सिंपल सा लिखते हैं, लास्ट मंथ लिख देते इसको, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में आपको कितना सोना चाहिए, और 1 मंथ पहले तक का, 1 मंथ पहले तक 6 आवर्स ओनली, कुछ भी हो जाए दिन में 6 ही घंटा सोना। और लास्ट 1 मंथ यू नीड टू इंक्रीज दिस वन अप टू 7 to 8 आवर्स। ठीक है, लास्ट महीने 7 to 8 आवर्स का नींद, एंड अभी कितना करना चाहिए, 6 घंटे का। इसके लिए एक साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। स्लीप के अंदर तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप बिना सोए 3 दिन, विदाउट स्लीपिंग इफ यू स्टडी फॉर 3 days and with sleeping if you study for 2 days, I would always vote for the person who slept and studied, matlab who had a sufficient sleep and studied. Why? Because he had his brain converting the short term memory to long term. शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म कन्वर्ट होने के लिए इट इज ए साइंटिफिक फैक्ट, नींद चाहिए। तो ये चीजों को मेंटेन करो। क्या क्या करना चाहिए, टाइम स्लॉट, रूल नंबर 1, थिंकिंग को मेंटेन करनी है, देन बिलीव इन यूरसेल्फ, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, खुद का ब्रेन पे कॉन्फिडेंस रखो। तुम अब्रॉड गए, you dealt with all the difficult situations and you came back, you had no problem। अब एग्जाम को देख के डरने का कम होना है। और डोंट कीप चेंजिंग द नोट्स, रेगुलरिटी मेंटेन करो, स्लीप मेंटेन करो। इतना चीज अगर आप ठीक से कर लोगे, आई कैन अश्योर यू वन सिंपल थिंग, यू विल पास योर एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो उसके साथ में एक हेल्प करने के लिए हमारे हमारे टीम बैठे हैं। ठीक है, सो एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू आउट। इसके अंदर कभी ये मत सोचना कि अरे यार मैं अकेला रह गया। तुम अकेले नहीं हो, विथ यू वी आर देयर। ठीक है, टू हेल्प यू आउट, एवरीबडी इज देयर, सो स्टे कॉन्फिडेंट। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।